Audio Jungle. السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ غازی ناول، ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھیں۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور ایک 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھیں، جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا تھا۔ نہر عبور کرنے کے دوران بیگوں کو سر پر باندھنے کے لیے رسا بھی دیا گیا تھا۔ 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا راستہ پانی، سرکنڈوں اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے تقریباً 80 میل کا علاقہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور بقیہ رینگتے ہوئے۔ کیچڑ اور سرکنڈوں سے ہمارے جسم مٹی اور خراشوں سے بھر گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کب بھارت میں داخل ہوئے، کیونکہ سرحد کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ ہم بس آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے کہ گائیڈ نے کہا تھا کہ نہر آ گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے نہر میں اتر گئے۔ گولیاں دونوں طرف سے تڑاک تڑاک چل رہی تھیں۔ نہر کو ہم نے کھڑی پوزیشن میں تیر کر عبور کیا۔ بھارت کی طرف سے کنارہ پانی سے خاصا اونچا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں دقت ہوئی۔ اس کنارے پر پگڈنڈی بھی تھی، جس پر BSF بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس گشت کرتی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس پگڈنڈی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق پگڈنڈی پر ہمیں الٹے قدموں چلنا تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس کے نشان دیکھے بھی تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف گئے ہیں۔ پگڈنڈی سے الٹے قدموں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کھیتوں کی منڈیروں پر ہم تیز سے تیز بھاگتے گئے۔ کھیتوں میں ڈیرے بنے ہوئے تھے۔ ہم ان ڈیروں سے حد الوسع دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کئی بار ایک کھیت عبور کر کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب جانا پڑتا، کیونکہ ڈیروں پر پالتو کتے ہوتے ہیں۔ غرض کیا کہ صرف ایک جگہ 10 منٹ آرام کر کے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہنومان گڑھ اسٹیشن سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ ہم نہر میں کود پڑے، اچھی طرح سے نہائے اور جسم کی آلودگی دور کی۔ انڈر ویئر اور بنیان سے جان چھڑائی اور سویلین لباس پہن لیے۔ گائیڈز نے ہمارے لیے ٹکٹ لینے جانا تھا، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ پیسے تم رکھ لو اور اندھیرے میں واپس اس گاؤں میں پہنچ جاؤ جہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ واقعی واپس جا رہے ہیں یا کہیں چھپ گئے ہیں۔ اسمگلروں سے ہر بات ممکن ہے۔ میں نے ساتھی کو بھی ریوالور لوڈ کرنے کو کہا کہ اگر یہ ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو فوراً گولی مار دینا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وہ اسی راستے پر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں دور سے گاڑی کے وسل کی آواز آئی اور ہم نے اسٹیشن کی راہ لی۔ یہ بھنڈا جانے والی گاڑی تھی۔ بالکل چھوٹا سا اسٹیشن تھا، ابھی ہلکا ہلکا اجالا ہوا تھا۔ ہم 4 ساتھی اسٹیشن سے ذرا فاصلے سے پٹری کی دوسری جانب چلے گئے اور 5 ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف چلے گئے۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف سے ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے دروازے سے گزرتے ہوئے ساتھیوں کو ٹکٹ تھمایا اور ہم چاروں اجنبی بن کے ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن تھا۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بھنڈا جنکشن تھا، جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ بھنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بھنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ گئے تھے اور بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا۔ وائرلیس سیٹ بھی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ وائرلیس سیٹ اور باقی سامان ایک ہی بیگ میں تھا اور اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دہلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم فرسٹ پیسنجر میں دہلی تک کا سفر کریں گے، تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو
वहाँ के हालात से बाखबर हो सकें। फर्स्ट पैसेंजर सपैद 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने सेकंड क्लास के टिकट लिए। भंडा स्टेशन से हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो यकीनन बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी और हम एक डब्बे का इंतखाब करके इसी में इकट्ठे बैठ गए। फैसला ये हुआ था कि वायरलेस का बैग ऊपर की बर्थ पर रखा जाए और जिसकी ड्यूटी हो वो इस पर सर रखकर खुद को सोता जाहिर करे। ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से सिख मुसाफिरों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात महसूस हुई कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूस दिखाई दे रहे थे, वरना सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी 2 सिख मौजूद हों वहाँ कहकी और ऊंची आवाज में बातें लाजमी हो जाती हैं। यूं महसूस होता था कि भारतीय पंजाब के सिख भी अपनी आज़ादी की मंजिल 71 की जंग से वाबस्ता कर बैठे थे और इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, या फिर वो हमें हिंदू समझ के मोहतात और मुतनफ़्फ़र से थे। मैंने 2-3 बार इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार निहायत मुख्तसर जवाब मिला। हमने भंडा से बराह रास्त दिल्ली जाने के लिए पहले जलंधर और फिर दिल्ली जाने को तरजीह दी, क्योंकि हमारे सफर के दौरान 3 बड़ी छावनियाँ जलंधर, लुधियाना और अम्बाला आनी थी। इन छावनियों के स्टेशनों पर काफी चहल पहल थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में भारतीय FIU फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के आदमी मुसाफिरों की चेकिंग करते भी दिखाई दिए। इसकी लाज़िम वजह मशरकी पाकिस्तान से कैद होने वाले पाकिस्तानी जंगी कैदियों के भारत के POW कैंपस से फरार होने के दर्जनों वाकयात थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों फौजियों ने हथियार नहीं डाले थे। इनमें से कुछ बर्मा की तरफ और बेशतर भारतीय सरहदों में दाखिल हो गए थे और छुपते छुपाते पाकिस्तान के पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इन्हें ही पकड़ने के लिए भारतीय पंजाब में अमृतसर की जानिब जाने वाली ट्रेनों की चेकिंग की जाती थी। भंडा से दिल्ली के सफर के दौरान हमने 3 और मिलिट्री स्पेशल ट्रेनें देखी। एक तो भंडा स्टेशन पर खड़ी थी। 2 ट्रेनों पर फ्रांस के बने हुए AMX-13 और रूसी PT-76 टैंक, दूर मार तोपें, कैट टाइगर मिसाइल की बैटरियां लदी हुई थीं। इन ट्रेनों को बाकी सब ट्रेनों पर फौकियत देकर थ्रू किया जाता था। इन ट्रेनों के पाकिस्तानी सरहद की जानिब जाने से भारतीय अज़ाइम का साफ पता चलता था कि वो मगरबी पाकिस्तान पर फौजी दबाव बढ़ा रहा है और साबका मशरकी पाकिस्तान से फौजें हटाकर मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर जमा कर रहा है। रूसी साख्ता PT-76 टैंक एम्बिशियस यानी पाकिस्तान में तैरने वाले टैंक हैं। सीज फायर के बाद इन मखसूस टैंकों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर लाने से भारतीय इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। एक ट्रेन में भारतीय फौजी सवार थे। सिर्फ आधे दिन में हमने 4 फौजी ट्रेनें देखी थी। मैंने इन ट्रेनों और इनके कार्गो को अच्छी तरह ज़हन में बिठा लिया ताकि अपनी पहली रिपोर्ट पे इनका जिक्र कर सकूं। रात तकरीबन 9:30 बजे ट्रेन शादरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना के मगरबी जानिब शादरा स्टेशन है, बिल्कुल लाहौर वाले शादरा स्टेशन की तरह। हमने इसी स्टेशन पर गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सब्जी मंडी स्टेशन के करीब घंटा घर चौक में हमने 2 मामूली होटलों में क़याम किया। चूँकि भारत में शनाख्ती कार्ड राइज नहीं है, इसलिए इन होटलों में कमरे हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। वहाँ हम सब ने खुद को मामूली कारोबारी की हैसियत से मुतारिफ कराया और बताया कि हम गिरदो नवा के छोटे शहरों से खरीदारी के लिए आए हैं। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन में भी खासी कमी आ चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 की टोलियों में दिल्ली में घूमने फिरने की इजाज़त दी। होटलों में हमने दाखिले के रास्ते के अलावा किसी इमरजेंसी के लिए दूसरे रास्ते भी तलाश कर लिए थे। हमारा क़याम पहली मंजिल पर था और एक मंजिल से कूदना हमारे लिए कोई दुश्वार न था। दूसरे रोज मेरे 4 साथी घूमने फिरने निकल गए। मैंने इन्हें हिदायत की कि वो कम से कम 4 अदद रेडीमेड पतलूने, कमीजें और जूते जरूर लें और जरूरत का दीगर सामान भी जो इन्होंने शाम तक खरीद लिया। दुश्वारी मुझे पेश आई। मेरे लंबे कद की वजह से मुझे रेडीमेड कपड़े न मिल सके। मैंने कनाट पैलेस में भी तकरीबन सब दुकानें छान मारी। सिर्फ एक सफारी सूट मेरे साइज का मिल सका। चुनाचे मैंने 4 अदद 3 पीस सूट, एक डिनर सूट और कमीजों का कपड़ा खरीद कर इसी दुकान से अर्जेंट सिलवाने का ऑर्डर दिया। बूट मेरे साइज के बड़ी मुश्किल से मिले। पाकिस्तान में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आला दर्जे के होटल में क़याम करना और मुख्तलिफ क्लबों खसूसन जेम खाना और सर्विसेज क्लब में भी जाना था, लिहाजा वहाँ के माहौल के मुताबिक मुझे कपड़े खरीदने थे। दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में क़याम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टेक्ट से मिलने की जगह भी देखी और वहाँ से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज़ बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कोरोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही हमारे क़याम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री बहरी और हवाई अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सफारत खाना इस्लामी तर्ज तामीर का बहुत अच्छा नमूना था, ताहम इन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर बेशतर शीशे वगैरह तोड़ दिए थे।
सफारत खाना बंद था और पुलिस का एक ही सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। हमें अब इंतजार था अपने कॉन्टेक्ट का जिसे हमारी रवानगी के 10वें दिन मुझसे मिलना था और डाक देनी थी जिसमें मजीद हदायत हमें मिलनी थी। इस दौरान हमें अपना होमवर्क करना था। मैंने अपने 2 साथियों को झांसी भेजा। झांसी से पहला स्टेशन बाबीना है। इन 2 स्टेशनों के दरमियान भारत की 1st आर्मर्ड कोर का एक टैंक डिवीजन और नंबर 10 आर्मर्ड ब्रिगेड बेस थी। मेरे साथियों के जिम्मे ये काम था कि झांसी में कोई माकूल होटल देखें और मालूम करें कि कोर हेडक्वार्टर तक जाने के लिए टैक्सी या कोई सवारी मिल सकती है। झांसी का पुराना किला भी फौज के ज़ेर इस्तेमाल था। इसके मुतल्लिक भी अगर कोई मुफीद इत्तला मिल सकती हो तो हासिल करें। मैंने अपने दूसरे 2 साथियों को आगरा भेजा कि वहाँ पर फौजी छावनी के मुतल्लिक जो भी मालूमात मिल सकती हो वो हासिल करें। खुद अपने लिए मैंने आर्मी, नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने का रास्ता ढूंढना था। यह हमारा एक तरह से होमवर्क था जिसे हमने कॉन्टेक्ट के आने से पहले मुकम्मल करना था। इसके अलावा वो अपने हमदर्द दोस्तों के ठिकाने भी देखने थे ताकि बवक्ते ज़रूरत इन ठिकानों को तलाश न करना पड़े। गज़किया दिल्ली में 2 दिन के क़याम के बाद हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया। अपने साथियों को मैंने 4 दिन के अंदर वापस आने का कहा था। चौथे रोज़ मुकर्रर वक्त पर हमें कनाट सर्कस एक रेस्टोरेंट में तयशुदा वक्त पर मिलना था। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहाँ शाम गहरी होते ही मुल्की व गैर मुल्की लोग आना शुरू कर देते हैं। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी और मैंने इन्हीं लोगों में से अपने मतलब के लोग तलाश करने थे। मेरा काम ऊंची सोसाइटी के इन होटलों में किसी से जानबूझकर टकरा जाना और आई एम सॉरी कहकर तारुफ हासिल करना और फिर इनकी दावत पर इन्हीं लोगों में से अपने मतलब के लोग तलाश करना था। यहाँ इस तौर से राह रस्म पैदा करना एक मामूली बात थी, खास तौर पर जबकि वो मखमूर हों। 1-8 घंटे में ही बिल्कुल अजनबी लोग खासे फ्री हो जाते हैं। मैंने वहाँ खुद को खुली चाय का एक व्यापारी जाहिर किया जो कलकत्ता से चाय बम्बई मंगवाता था और अपनी कंपनी में ब्लेंड करके चाय के व्यापारियों को बेचता था। मैंने चाय की ब्लेंडिंग चटाकांग में मुलाजमत के दौरान सीखी थी। ब्लेंडिंग का मतलब है मुख्तलिफ इकसाम की चाय की दर्जा बंदी करके और मुख्तलिफ वजन में इन्हें मिलाकर चाय का एक मखसूस मेयार तैयार करना। लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड और असफहानी इसी तरह अपने ब्लेंड तैयार करते हैं। दार्जिलिंग की ऑरेंज पीको चाय का शुमार दुनिया की बेहतरीन चाय में होता है। यहाँ पर मेरा काम ये था कि एक ब्रांड अपनी चाय का बनाऊं और इसे तकरीबन निस्फ कीमत पर छावनियों में फरोख्त करूं। छावनियों में फौजी जवानों और एनसीओस के लिए लंगर की चाय, खुली चाय ही इस्तेमाल की जाती है। डिवीजन हेडक्वार्टर्स में एडीओएस यानी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सप्लाईज तक रसाई की सूरत में मैं पूरे डिवीजन के लंगरों के लिए चाय की फरोख्त का ऑर्डर ले सकता था। इसी तरह ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स में भी लोकल सप्लाई के तहत मुझे ऑर्डर मिल सकते थे और इसी तरह मेरी रसाई अफसर आला तक हो सकती थी। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में जाना चाहता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हो जाए और इस तरह छावनी में चाय के ऑर्डर हासिल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश न आए। इस आला सोसाइटी में अफसरान आला बनने तक शौहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और बीवी ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती है। आला हिंदू माशरे और खसूसन फौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके थे कि अक्सर जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और इनकी यही कमजोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान करने वाली थी। इस दौरान मेरे 4 साथी भी वापस लौट आए और निहायत मुफीद मालूमात लाए। आगरा छावनी तकरीबन खाली थी और छावनी में मुकीम बेशतर फौजी मगरबी पाकिस्तान की सरहद पर गए हुए थे। जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट की 2-2 बटालियन मौजूद थी। इधर झांसी और बाबीना के दरमियान आर्मर्ड डिवीजन के इलाके में किसी सिविलियन का दाखिला काफी खतरनाक था और मुकम्मल तहकीक और तलाशी के बाद ही किसी को इस इलाके में जाने की इजाजत थी। झांसी के किले में एमुनेशन डिपो था और वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। बहरहाल हम फिल्में देखने और महज सैर व तफरी के लिए तो दुश्मन मुल्क में आए नहीं थे। अपने मिशन की तकमील में जो भी रुकावटें थी हमें इन्हें बहरहाल दूर करना था। अब हम अपने कॉन्टेक्ट के मुंतजिर थे। मुकर्रर तारीख की रात में मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि कॉन्टेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक मुकर्रर जगह पर इंतजार करूं। अगर कॉन्टेक्ट ना आए तो फौरन वहां से गायब हो जाऊं और ठीक 1 हफ्ते बाद इसी जगह और इसी वक्त पर 15 मिनट इंतजार करूं। एपिसोड 3 इख्तिताम पजीर हुई।